السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے دوستو، فن منطق کی مشہور و معروف کتاب جواہر المنطق کا سبق نمبر 13 پڑھتے ہیں۔ اس سے ماقبل میں ہم نے بیان کیا تھا کہ دو کلیوں کے درمیان میں پائی جانے والی نسبت کی کل 4 قسمیں ہیں: تساوی، تباین، عموم خصوص، مطلق، عموم خصوص من وجہ۔ پہلی کلی دوسری کلی کے ہر فرع پر صادق ہے، اسی طریقے سے دوسری کلی پہلی کلی کے ہر فرع پر صادق ہے، تو ان دونوں کلیوں کے درمیان میں تساوی کی نسبت ہے۔ اور اگر پہلی کلی دوسری کلی کے کسی فرع پر صادق نہ آئے، اسی طریقے سے دوسری کلی پہلی کلی کے کسی فرع پر صادق نہ آئے، تو ایسی دو کلیوں کے درمیان میں جو نسبت ہوتی ہے اس کو تباین کہتے ہیں۔ اور دوسری کلی پہلی کلی کے ہر فرع پر صادق آئے لیکن پہلی دوسری کی کسی ہر فرع پر صادق نہ آئے بلکہ بعض فرع پر صادق آئے، تو اس کو عموم خصوص مطلق کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے دو کلیوں کا اس طرح ہونا کہ ہر کلی دوسری کلی کے صرف بعض افراد پر صادق آئے، تو ایسی دو کلیوں کے درمیان میں عام خاص من وجہ کی نسبت تھی۔ آج اسی کی وضاحت کر رہے ہیں، توضیح بیان کرتے ہوئے، یعنی تفصیلی اعتبار سے اس کتاب میں جو آپ نے چاروں کلیوں کے درمیان میں جو نسبت پڑھی تھی ان کو تفصیلی صورت میں بیان کرنے جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں توضیح: کلیان متساویان میں سے کوئی ایک کلی جس مادے پر صادق آئے گی تو اس پر دوسری کلی بھی ضرور صادق آئے گی۔ کلیان متساویان میں سے کوئی ایک کلی جس مادے پر صادق آئے گی تو اس پر دوسری کلی بھی ضرور صادق آئے گی۔ جیسے ہم نے کل بتایا تھا، مثال بھی دی تھی، اور آج کتاب میں بھی صاحب کتاب بتا رہے ہیں، جیسے کہ ہر انسان ناطق ہے۔ ہر انسان ناطق ہے۔ انسان کے جتنے بھی افراد ہوں، چاہے وہ زید ہو، چاہے وہ بکر ہو، چاہے وہ خالد ہو، چاہے وہ عمر ہو، چاہے وہ ہندوستان کا انسان ہو، چاہے وہ پاکستان کا انسان ہو، چاہے وہ راجستھان کا انسان ہو، چاہے وہ افغانستان کا انسان ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی تان کا انسان ہو، جتنے بھی انسان ہوں گے، انسان کے ہر فرد، چاہے گورے ہوں، چاہے کالے ہوں، چاہے بوڑھے ہوں، چاہے جوان ہوں، چاہے عورت ہو، چاہے مرد ہو، ہر انسان، سب کے سب انسان ہیں۔ اور جتنے بھی انسان ہوں گے سب کے سب ناطق ہوں گے۔ سب کے سب کیا ہوں گے؟ ناطق ہوں گے۔ جیسے ہر انسان کیا ہے؟ ناطق ہے، اور ہر ناطق انسان بھی ہے۔ ناطق اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر بولنے کی قوت ہو، قوت گویائی جس کے پاس ہو، ٹھیک ہے؟ اور ہر ناطق انسان ہے، ہر انسان کے اندر قوت گویائی ہے۔ ہر ناطق، جس طریقے سے ہر انسان ناطق ہے اسی طریقے سے ہر ناطق انسان ہے۔ یعنی جس فرد پر، فرد کسے کہتے ہیں؟ جس پر کوئی کلی صادق ہے۔ پیچھے آپ نے تعریف پڑھی تھی، فرد کسے کہتے ہیں؟ جس پر کوئی کلی صادق ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ جو کسی کلی کا بچہ ہو، جو کسی کلی کے تحت رہتا ہو، جو کسی کلی کا بچہ ہو، اس کو فرد کہتے ہیں۔ یعنی جس پر فرد صادق، یعنی جس فرد پر انسان صادق آتا ہے اس پر ناطق صادق آتا ہے، اور جس فرد پر ناطق صادق آتا ہے اس پر انسان بھی صادق آتا ہے۔ کلیان متباینان کے لیے 2 مادے اشتراک کے پائے جاتے ہیں۔ 2 مادے مطلب یعنی دونوں کلی ایک دوسرے کے ساتھ بالکل بھی جمع نہ ہوں، نہ پہلی دوسری کے ساتھ، نہ دوسری پہلی کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اشتراک یعنی ان کی دونوں کے درمیان میں کیا ہو؟ جدائیگی ہو۔ قریب کلیان متباینان کے لیے 2 مادے اشتراک کے پائے جاتے ہیں، جیسے کوئی انسان جن نہیں، کوئی انسان، دنیا کا کوئی بھی انسان جن نہیں، یہ مادہ اشتراک ہے۔ اور اسی طریقے سے کوئی بھی جن انسان نہیں، کہ نہ کوئی انسان جنات ہے اور نہ ہی کوئی جنات انسان ہے۔ بھائی انسان مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، یہ مٹی سے بنایا گیا ہے، اور جنات آگ سے بنائے گئے ہیں۔ تو جس طریقے سے کوئی آگ مٹی نہیں، جس طریقے سے کوئی آگ جو ہے مٹی نہیں اور کوئی مٹی آگ نہیں، اسی طریقے سے کوئی انسان جن نہیں اور کوئی جن انسان نہیں، تو ان دونوں کے درمیان میں جدائیگی ہے، ٹھیک ہے؟ اور دونوں جدائیگی کیسے ہیں؟ اشتراک کی جدائیگی ہے، یعنی 2 مادے ہیں اس کے اندر اور دونوں اشتراک کے ہیں، یعنی جدائیگی کے ہیں۔ یعنی جس شخص پر انسان صادق آتا ہے اس پر جن صادق نہیں آتا، اور جس فرد پر جن صادق آتا ہے اس پر انسان صادق نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ کلیان عام خاص مطلق کے لیے بھی 2 مادے پائے جاتے ہیں۔ کلیان عام خاص مطلق کے لیے بھی 2 مادے پائے جاتے ہیں، ایک اجتماع کا اور دوسرا اشتراک کا۔ یعنی ایک صورت تو ایسی ہوگی کہ جہاں پر دونوں کلی ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے، اور 2 جگہ ایسی ہوں گی کہ دونوں کلی وہاں پر جمع نہیں ہوں گے۔ جیسے دیکھو، ایک ساتھ جمع نہیں ہوں گے،
यानी एक जगह ऐसा होगा कि दोनों कुल्ली एक साथ जमा हो जाएंगे और दो जगह ऐसे होंगे कि दोनों कुल्ली एक साथ जमा नहीं होंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए हर इंसान हैवान है, तो यहाँ पर इंसान भी है और हैवान। जैसे जैद ले लो, जैद को पकड़ लो आप, जैद इंसान भी है और हैवान भी है ना। जैद इंसान भी है और हैवान भी है, क्योंकि इंसान जो है वो हैवान ही की किस्म से है। और तो जाहिर सी बात है, ये कह लीजिए कि मिसाल के तौर पर जैद है पोता और इंसान है जैद का बाप, और इंसान का बाप है हैवान। जैद का दादा हुआ हैवान, यानी जैद इंसान का बेटा हुआ और इंसान हैवान का बेटा हुआ। ठीक है, तो जब जहाँ जहाँ बेटा पाया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वहाँ वहाँ उसका बाप भी पाया जाएगा। तो इंसान है बाप जैद का और इंसान का बाप है हैवान। तो जब जैद में बाप पाया जाता है तो उसका दादा यानी हैवान भी पाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम ये कहें कि हैवान नहीं पाया जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि इंसान का कोई बाप ही नहीं था, यानी इंसान के अंदर हैवान का कोई असर ही नहीं था। हालांकि इंसान हैवान ही से यानी इंसान हैवान ही से निकल कर आया है। तो इसलिए जहाँ जहाँ इंसानियत होगी वहाँ वहाँ हैवान ज़रूर होगा, लेकिन जहाँ जहाँ हैवान हो वहाँ इंसान पाया जाए ये ज़रूरी नहीं है। हर इंसान हैवान है, जैसे जैद के अंदर इंसान भी और हैवान भी है। ये इज्तिमा का मादा। तो यहाँ पर इंसान और हैवान दोनों जमा हो गए, इस वजह से इनको क्या कहते हैं, ये इज्तिमा के मादे हैं। नंबर 2, बाज़ हैवान इंसान नहीं। बाज़ हैवान यानी बाज़ चीज़ें, बाज़ हैवान तो हैं लेकिन वो इंसान नहीं। जैसे कुत्ता है, ये हैवान तो है लेकिन वो इंसान नहीं है। तो यहाँ पर हैवानियत, कुत्ते के अंदर हैवान तो पाया गया है लेकिन इंसान नहीं पाया गया। तो देखिए इंसान और हैवान दोनों एक साथ जमा नहीं हुए। हैवान कुत्ते के अंदर हैवान नहीं, कुत्ते के अंदर हैवान तो जमा हुआ लेकिन इंसान जमा नहीं हुआ। लेकिन जैद के अंदर इंसान भी था और हैवान भी था, तो वो पहला वाला इज्तिमा का मादा हुआ और ये इफ्तराक का मादा हुआ। और जैसे हर कुल्ली मफहूम है, हर कुल्ली मफहूम है, यहाँ पर भी देखिए हर कुल्ली मफहूम है। तो कुल्ली जो है वो कुल्ली है और मफहूम भी है, लेकिन हर मफहूम कुल्ली हो ऐसा नहीं है। जुज़ी हो जाए वो, भाई बाज़ मफहूम जुज़ी होते हैं, मफहूम कुल्ली होते हैं। तो हर मफहूम, हर कुल्ली क्या है, मफहूम है। हर कुल्ली तो मफहूम है ना। तो यहाँ पर कुल्ली भी है और मफहूम भी है, तो ये दोनों जमा हो गए, तो ये इज्तिमा का मादा है। लेकिन बाज़ मफहूम कुल्ली नहीं होते हैं, बाज़ वो मफहूम जो जुज़ी होते हैं वो कुल्ली नहीं होते हैं। तो यहाँ पर मफहूम तो है लेकिन कुल्ली नहीं है, तो ये भी मादे इफ्तराक का है। अब कह रहे हैं कुल्लियान आम ख़ास मिनवज के लिए 3 मादे होते हैं। 3 मादे होते हैं, यानी एक मादा इज्तिमा का और 2 मादे इफ्तराक के। कुल्लियान आम ख़ास मिनवज के लिए 3 मादे होते हैं, एक मादा इज्तिमा का और 2 मादे इफ्तराक के होते हैं। एक इज्तिमा का यानी एक जगह तो ऐसी होंगी कि जहाँ पर दोनों कुल्लियाँ एक साथ जमा हो जाएंगी, और 2 जगह ऐसी होंगी कि दोनों कुल्लियाँ जो हैं अलग अलग होंगी, यानी अगर एक पाई जाती है तो दूसरी नहीं, अगर दूसरी पाई जाती है तो पहली नहीं। जैसे बाज़ फ़ाइल इसमें फ़ाइल होते हैं, बाज़ फ़ाइल इसमें फ़ाइल होते हैं। जैसे फ़ाइल अलग है और इसमें फ़ाइल अलग है, आपको पता होना चाहिए। फ़ाइल उसको कहते हैं, यानी फ़ाइल उसको कहते हैं जो फ़ेल को अंजाम देने वाला होता है। हाँ, फ़ाइल किसे कहते हैं, जो फ़ेल को अंजाम देने वाला होता है। और इसमें फ़ाइल उसको कहते हैं जो फ़ेल को अंजाम देने वाला नहीं, बल्कि फ़ाइल की, इसमें फ़ाइल की एक अलग तारीफ़ होती है। इसमें फ़ाइल ऐसा इसम है जो क्या करे, किसी काम पर दलालत करे, माने हदस के साथ या और किसी एतबार से। तो जो इसमें फ़ाइल होता है वो फ़ाइल अलग है और इसमें फ़ाइल अलग होते हैं। ठीक है, फ़ाइल ये फ़ेल के साथ जो पाया जाता है उसको कहते हैं, और उसमें फ़ाइल का इस फ़ेल के साथ पाया जाना ज़रूरी नहीं, बल्कि इसमें फ़ाइल एक अलग सैगा है, एक अलग मुस्तकिल एक जो है सिफत का सैगा है। वही कह रहे हैं कि बाज़ इसमें फ़ाइल होते हैं, बाज़ फ़ाइल इसमें फ़ाइल होते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर हमने कहा जा आलिमुन आलिम आया, तो यहाँ पर देखिए आलिमुन ये फ़ाइल भी है क्योंकि आने वाला है, वो उसने आने का काम किया है। जा आलिमुन आलिम आया, तो ये फ़ाइल भी है और इसमें फ़ाइल भी है क्योंकि ये फ़ाइलुन के वज़न पर है, इसमें फ़ाइल का सैगा है ये। तो यहाँ पर इसमें फ़ाइल और फ़ाइल दोनों जमा है। और फिर दूसरे नंबर पर करें तो ये मादे इज्तिमा का है, यानी इसके अंदर फ़ाइल भी जमा हो गए और इसमें फ़ाइल भी जमा हो गया। नंबर 2, बाज़ फ़ाइल इसमें फ़ाइल नहीं, बाज़ फ़ाइल तो है लेकिन वो इसमें फ़ाइल नहीं। जैसे हमने कहा ज़रबा ज़ैदुन, ज़ैद ने मारा। अब ज़ैद ये फ़ाइल तो है लेकिन ये इसमें फ़ाइल नहीं है, क्योंकि इसमें फ़ाइल के लिए ज़रूरी कि वो फ़ाइलुन के वज़न पर हो, और ज़ैदुन फ़ाइलुन के वज़न पर है नहीं। तो ज़रबा ज़ैदुन में फ़ाइल तो है लेकिन इसमें फ़ाइल नहीं, तो ये मादा इफ्तराक का हो गया। और कह रहे बाज़ इसमें फ़ाइल नहीं, बाज़ इसमें फ़ाइल नहीं। उसकी मिसाल जैसे कि उसकी मिसाल जैसे कि
अज़्ज़ारिबु, है ना, अज़्ज़ारिबु। तो यहाँ पर इसमें फ़ाइल है लेकिन ये फ़ाइल नहीं है। या ये कह लो क़तलतु ज़ालिमन, मैंने ज़ालिम को कत्ल किया। राइतु ज़ालिमन, मैंने ज़ालिम को देखा। तो देखिए ज़ालिमन जो है ये इसमें फ़ाइल का सीगा तो है लेकिन ये फ़ाइल नहीं है, ये मफ़ूल बन रहा है। तो बाद जगह ऐसे होंगे कि वहाँ फ़ाइल तो होगा लेकिन वो इसमें फ़ाइल नहीं होगा, जैसे ज़राबा ज़ैदुन में। और बाद जगह ऐसे होगा कि जहाँ पर फ़ाइल तो होगा लेकिन वो इसमें फ़ाइल तो होगा लेकिन वो फ़ाइल नहीं, जिससे क़तलतु ज़ालिमन में ज़ालिमन, ये फ़ाइल तो इसमें फ़ाइल तो है लेकिन ये फ़ाइल नहीं है। वही कह रहे हैं कि बाज़ इसमें फ़ाइल होते हैं मादे इज्तिमा, बाज़ फ़ाइल इसमें फ़ाइल नहीं मादे इफ्तराक, बाज़ इसमें फ़ाइल नहीं मादे इफ्तराक। मादे इज्तिमा की मिसाल जैसे कि जा आलिमुन, जा आलिमुन में लफ्ज़ आलिमुन है क्योंकि जा आलिमुन में लफ्ज़ आलिमुन है क्योंकि लफ्ज़ आलिमुन पर दाखिल और इसमें फ़ाइल दोनों सादिक आते हैं, क्योंकि लफ्ज़ आलिमुन पर इसमें फ़ाइल और फ़ाइल दोनों सादिक आते हैं। ठीक है। और मादे इफ्तराक की मिसाल जैसे कि जा रजुलुन में रजुलुन है क्योंकि रजुलुन पर फ़ाइल सादिक आता है लेकिन इसमें फ़ाइल सादिक नहीं आता है। बिल्कुल ये फ़ाइल तो है लेकिन इसमें फ़ाइल नहीं है क्योंकि वो फ़ाइल के वज़न पर होना चाहिए। मादे इफ्तराक की तीसरी मिसाल जैसे क़तलतु ज़ालिमन में लफ्ज़ ज़ालिमन है क्योंकि ज़ालिमन पर इसमें फ़ाइल सादिक आता है लेकिन फ़ाइल सादिक नहीं आता है। अब सवाल कर रहे हैं, सवाल का जवाब दीजिए, कुछ बयान है। कह रहे सवाल, जुज़े हकीकी और जुज़े इज़ाफ़ी के दरमियान में कौन सी निस्बत है? जुज़े हकीकी और जुज़े इज़ाफ़ी के दरमियान में कौन सी निस्बत है? हमने पढ़ा था ना, जुज़े हकीकी किसे कहते हैं? जो कसीरीन पर सादिक ना आए, यानी जो अपने अंदर कसीर अफराद को शरीक ना करे, जैसे कि ज़ैद, बकर, खालिद, ये सब जुज़े हकीकी थे। और जुज़े इज़ाफ़ी उसको कहते हैं वो जुज़े इज़ाफ़ी उसको कहते हैं वो जो किसी आम के तहत हो, जो किसी आम के नीचे हो, यानी जो किसी आम के अफराद बने, जो किसी कुल्ली के, जो किसी आम के यानी किसी कुल्ली के जो है कि बने अफराद के नीचे हो, यानी जो किसी आम कुल्ली यानी ऐसी कुल्ली हो जो कि आम हो और वो उसके नीचे हो, यानी कुल्ली तो हर आम होती है लेकिन वो किसी आम के तहत में हो, तो उसको जुज़े इज़ाफ़ी कहते हैं। जैसे उसकी मिसाल इंसान, इंसान जो है ये हैवान के तहत में है, हैवान जिसमें नामी के तहत में है, जिसमें नामी जौहर के तहत में है, जौहर जिसमें मुतलक के तहत में है। तो इस एतबार से सब के सब क्या हैं? जुज़े इज़ाफ़ी हैं। करें कि जुज़े हकीकी और जुज़े इज़ाफ़ी के दरमियान में कौन सी निस्बत है? जवाब उमूम खुसूस मुतलक की निस्बत है, इसलिए कि हर जुज़े हकीकी जुज़े इज़ाफ़ी है। जैसे ज़ैद ये जुज़े हकीकी है और जुज़े इज़ाफ़ी भी है। जुज़े हकीकी इस एतबार से है कि ज़ैद ये कसीरीन पर सादिक नहीं आता है, कसीर अफराद पर सादिक नहीं आता, बल्कि एक मुतय्यन ज़ात का नाम ज़ैद है, तो ये जुज़े हकीकी है। और जुज़े इज़ाफ़ी इस वजह से है कि ये आम के तहत है, यानी कि ये कुल्ली आम, यानी जब किसी कुल्ली के तहत में हो उसको जुज़े इज़ाफ़ी कहते हैं। तो जुज़े इज़ाफ़ी इस एतबार से है कि ये इंसान के तहत में है, यानी इंसान के नीचे है ना। सबसे पहले क्या है? पहले ज़ैद है, उसके बाद इंसान, इस इंसान के ऊपर हैवान, हैवान के ऊपर जिसमें नामी के ऊपर जिसमें मुतलक, उसके ऊपर जौहर है। तो ज़ैद जो है ये जुज़े हकीकी भी है और जुज़े इज़ाफ़ी भी है। कैसे? क्योंकि जुज़े हकीकी इस एतबार से कि कसीरीन पर सादिक नहीं आ रहा है, और जुज़े इज़ाफ़ी इस एतबार से है कि वो आम यानी इंसान के तहत में है। तो ज़ैद जो है जुज़े हकीकी भी है और जुज़े इज़ाफ़ी भी है, तो इसके अंदर ज़ैद के अंदर दोनों जमा हो गए, यानी जुज़े हकीकी और जुज़े इज़ाफ़ी दोनों। नंबर 2, बा जुज़े इज़ाफ़ी जुज़े हकीकी नहीं। जैसे इंसान ये जुज़े हकीकी इज़ाफ़ी तो है लेकिन जुज़े हकीकी नहीं। जुज़े हकीकी क्यों नहीं है? जुज़े हकीकी इसलिए नहीं कि जुज़े हकीकी कहते हैं जो कसीरीन पर सादिक ना आए, ठीक है, जो कसीरीन पर सादिक ना आए, जो अपने अंदर कसीर अफराद को शरीक करने से माने हो। लेकिन इंसान कसीर पर सादिक आता है, दुनिया के अंदर न जाने कितने इंसान हैं और अपने अंदर दुनिया के तमाम अफराद को शरीक करने से ये माने भी नहीं है, तो ये क्या है? जुज़े हकीकी तो हो ही नहीं सकता। लेकिन जुज़े इज़ाफ़ी है, किस एतबार से? क्योंकि ये हैवान के तहत में है और इंसान और हैवान जो है वो इंसान से आम है, और हमने कहा कि हर वो जुज़े इज़ाफ़ी बन सकता है जो किसी आम के तहत में हो। तो इंसान ये हैवान के नीचे है और इंसान से हैवान क्या है? आम है। तो हैवान की तरफ निस्बत करते हुए इंसान जुज़े इज़ाफ़ी तो है लेकिन जुज़े हकीकी नहीं। तो यहाँ पर इंसान के अंदर एक ही जमा हुआ, यानी जुज़े इज़ाफ़ी तो जमा हुआ लेकिन जुज़े हकीकी जमा ना हुआ। तो जब एक ही कुल्ली जमा हुई इसके अंदर तो समझ लीजिए कि ये मादे इफ्तराक का है। करे बा जुज़े इज़ाफ़ी जुज़े हकीकी नहीं, तो इंसान जुज़े इज़ाफ़ी है लेकिन जुज़े हकीकी नहीं है। सवाल, कोई ऐसी मिसाल लाइए जो जुज़े इज़ाफ़ी हो लेकिन जुज़े हकीकी ना हो।
کوئی ایسی مثال لائیے جو جزء اضافی ہو لیکن جزء حقیقی نہیں. ہم نے مثال دے دیا ہے جیسے کہ انسان یہ جزء اضافی ہے لیکن وہ جزء حقیقی نہیں, کیونکہ وہ کثیر پر شادی کر رہا ہے بھائی, اور جزء حقیقی کے لیے ضروری ہے کہ کثیر افراد پر وہ جو ہے دلالت نہ کریں. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے فرض یہ بھی جو ہے حیوان کے تحت میں ہے, جزء اضافی ہے لیکن جزء حقیقی نہیں, کیونکہ فرض سے مراد کثیر افراد ہوتے ہیں, کثیر گھوڑے کے فرد ہوتے ہیں, تو یہ بھی جزء حقیقی نہیں ہے, جزء اضافی ہے کیونکہ حیوان کے تحت ہے. اسی طریقے سے حمار یہ بھی جزء اضافی ہے, جزء حقیقی نہیں. اسد یہ بھی جزء اضافی ہے کیونکہ سب کے سب حیوان کے تحت میں آتے ہیں, ہے نا. تو جزء حقیقی تو ہیں, جزء اضافی تو ہیں لیکن جزء حقیقی نہیں ہے. یہ سب جزء اضافی ہیں لیکن ان میں کوئی بھی جزء حقیقی نہیں. سوال, عالم اور حافظ میں کون سی نسبت ہے؟ عالم اور حافظ میں کون سی نسبت ہے؟ جواب, عالم اور حافظ میں کہہ رہے ہیں عالم اور حافظ کے درمیان میں عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے. ہم نے کیا کہا تھا؟ عموم خصوص من وجہ میں کیا ہوتا ہے؟ ایک مادہ اجتماع کا ہوتا ہے, دو اشتراک کے ہوتے ہیں. بعض ایسا ہوتا ہے کہ حافظ اور عالم دونوں ایک ذات میں جمع ہو جاتے ہیں, جیسے زید حافظ بھی ہے اور عالم بھی ہے, تو یہ مادہ اجتماع کا ہو گیا کہ زید کے اندر عالم بھی ہونا پایا جا رہا ہے اور حافظ بھی ہونا پایا جا رہا ہے. لیکن بعض ایسا ہوتا ہے, بعض شخص کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ وہ شخص عالم تو ہوتا لیکن حافظ نہیں ہوتا. جیسے مثال کے طور پر بکر عالم تو ہے لیکن وہ حافظ نہیں ہے. خالد کو لے لیجئے, خالد حافظ تو ہے لیکن وہ عالم نہیں ہے. تو اس کے اندر یعنی عموم خصوص من وجہ کے اندر یعنی حافظ اور عالم کے درمیان میں عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حافظ اور عالم ایک ساتھ کسی ایک فرد میں جمع ہو جاتے ہیں, اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ فرد حافظ تو ہوتا ہے لیکن وہ عالم نہیں ہوتا ہے, اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ فرد عالم ہو لیکن حافظ نہ ہو. وہی کہہ رہے ہیں. جواب, عالم اور حافظ کے درمیان میں عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے کیونکہ بعض عالم حافظ بھی ہوتے ہیں, بعض عالم بھی ہوتے ہیں اور حافظ بھی ہوتے ہیں. جیسے کہ ہمارے یہاں کے استاذ حضرت علامہ مولانا مفتی حبیب اللہ ظہری صاحب کی بلا مدہ ذیل العالی, وہ حافظ بھی ہیں ماشاءاللہ اور عالم بھی ہیں. تو حافظ اور عالم دونوں ہوتے ہیں. بعض عالم حافظ نہیں ہوتے, بعض حافظ عالم نہیں ہوتے. جیسے کہ ہمارے استاذ گرامی صدر العلماء حضرت علامہ محدث جلیل حضرت علامہ مفتی محمد صدر الورا مصباحی صاحب کی بلا ماشاءاللہ حافظ سے کم تو نہیں ہیں لیکن حافظ نہیں ہیں. عالم تو بہت زبردست ہے لیکن حضرت ہمارے حافظ نہیں ہیں, ہے نا. تو ان کے اندر عالم ہونا تو پایا جا رہا ہے لیکن یہ حافظ نہیں ہے. اور بعض حافظ عالم نہیں ہوتے ہیں, جیسے کہ ہمارے حافظ کلام الدین صاحب ہمارے ایک دوست ہیں, وہ حافظ تو ہیں لیکن وہ عالم نہیں ہیں. تو پتہ کیا چلا کہ عالم اور حافظ کے درمیان میں عموم خصوص من وجہ کی نسبت پائی جاتی ہے, اور عموم خصوص من وجہ میں تین مادے ہوتے ہیں, ایک اجتماع کا اور دو اشتراک کے. تو ایک اجتماع کا یعنی ایک شخص ہے کہ اس کے اندر حافظ اور عالم دونوں جمع ہو گئے, اور ایک یہ ہے کہ وہ عالم تو ہے لیکن حافظ نہیں, اور ایک یہ ہے کہ وہ حافظ ہے لیکن عالم نہیں. تو یہ رہے آج کے اسباق, آج کا سبق. آپ حضرات اس کو دہرائیے, پڑھیے اور محنت سے سمجھیے. ٹھیک ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ منطق میں آپ مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو میں فری میں مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ 10 ایسی مثالیں میرے سامنے آپ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر پر آپ واٹس ایپ کیجئے اور مجھ سے چیک کروائیے کہ جو چاروں کلیوں کو گھیر لے, یعنی ان چاروں کے درمیان میں یعنی چاروں کلیوں کی مثالیں یعنی نسبت بیان کرتے ہوئے آپ ہمارے سامنے اس کو پیش کرو. یعنی 2 کلیاں اٹھاؤں, یعنی تمام کچھ ایسی چیزیں ہیں جن پر آپ غور کیجئے, اس کے اندر پھر آپ نسبت بیان کیجئے, اس کو آپ کاپی پر لکھ کر لائیے اور اس کو ہمارے جو ہے یوٹیوب کے تھمبنیل پر جو ہمارا نمبر ہے اس نمبر پر آپ واٹس ایپ کر کے آپ اپنی کاپی چیک کروا سکتے ہو. آپ سے یہ پتہ چلے گا کہ آپ نے سبق کتنا سمجھا ہے کتنا نہیں سمجھا ہے. تب تک کے لیے میں کل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں. تب تک کے لیے آپ سے میں رخصتی چاہتا ہوں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.